صبح یہ وہ وقت ہے جب دنیا سست روی سے آنکھیں کھول رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ دن کا رخ اپنے حق میں موڑ لیں۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ دن کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے تاکہ پورا دن مقصد اور توانائی سے بھرپور گزرے۔ یہ ہیں وہ 3 راز جو آپ کی صبح کو کامیابی کا زینہ بنا سکتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ 3 راز ایسے 3 کام ہیں جو نہ صرف آسان ہیں بلکہ بہت تھوڑے وقت میں انجام بھی پا جاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 1، مراقبہ یا عبادت۔ دن کی شروعات میں دماغ اور دل کو سیدھی سمت میں لگا دینا باقی دن کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے، چاہے آپ مذہبی ہوں یا نہ ہوں۔ صبح کا پہلا عمل آپ کے اندرونی سکون اور ذہنی وضاحت کو طے کرتا ہے۔ مذہبی لوگوں کے لیے نماز اور عبادت وہ پل ہیں جو براہ راست خالق سے جڑتے ہیں، لیکن یہ عبادت صرف جسمانی حرکات نہ ہو بلکہ مراقبہ کی کیفیت میں ہو، یعنی ہر لفظ، ہر حرکت میں مکمل حاضری اور شعور ہو۔ جب آپ پوری توجہ سے نماز پڑھتے ہیں تو دماغ کے وہ حصے فعال ہوتے ہیں جو سکون، امید اور مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں۔ یہ محض روحانی فائدہ نہیں بلکہ سائنسی حقیقت ہے۔ جو لوگ مذہبی نہیں ہیں ان کے لیے مراقبہ ایک طاقتور متبادل ہے۔ مراقبے کا مطلب ہے موجودہ لمحے پر مکمل فوکس۔ یہ عمل دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو مضبوط کرتا ہے جو فیصلہ سازی، جذبات پر قابو اور تخلیقی سوچ کا مرکز ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق بتاتی ہے کہ صرف 8 ہفتے کا روزانہ مراقبہ دماغ کے اس حصے کو بڑھا دیتا ہے اور ذہنی دباؤ کو 40% تک کم کر دیتا ہے۔ مراقبہ یا عبادت کا ایک مشترکہ راز ہے سانس اور توجہ کا کنٹرول۔ چاہے آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں یا آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیں، دونوں میں دماغ کو بکھری ہوئی سوچوں سے نکال کر ایک نقطے پر مرکوز کیا جاتا ہے۔ یہ فوکس بعد میں آپ کے کام، تعلقات اور فیصلوں میں بھی جھلکتا ہے۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ مذہبی ہوں تو فجر کی نماز سے پہلے 1-2 منٹ بیٹھ کر اپنی سانس پر دھیان دیں، پھر نماز ایسے پڑھیں جیسے آپ دنیا میں تنہا ہیں اور رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ غیر مذہبی ہوں تو خاموش جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کریں، 4 سیکنڈ سانس لیں، 4 سیکنڈ روکیں، 4 سیکنڈ میں باہر نکالیں۔ یہ چکر کم از کم 10 بار کریں۔ یہ عمل آپ کو پیراسسٹمیٹک نروس سسٹم میں لے جاتا ہے جو جسم کو آرام اور تجدید کے موڈ میں لے جاتا ہے۔ اس موڈ میں دماغ بہترین فیصلے لیتا ہے، تخلیقی صلاحیت جاگتی ہے اور جذبات متوازن ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی زندگی میں یہ ایک لازمی جز ہوتا ہے۔ اسٹیو جابز روزانہ مراقبہ کرتے تھے اور دنیا کے بڑے روحانی رہنما عبادت کے ذریعے اپنی توانائی کو ریچارج کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے اندر سکون ہوتا ہے تو باہر کی دنیا کا شور آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، یہ عمل صرف مذہبی فریضہ یا یوگا ایکسرسائز نہیں بلکہ یہ ذہنی آپریٹنگ سسٹم کی اپ ڈیٹ ہے۔ جس طرح موبائل فون کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہ ہو تو وہ سست اور ایرر سے بھر جاتا ہے، ویسے ہی دماغ کو روزانہ کے اس فوکس اور سکون کے لمحے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دن بھر تیز اور صاف چلے۔ لہٰذا دن کی پہلی جیت یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن اور دل کو ایک نقطے پر مرکوز کر لیں، چاہے وہ رب کا ذکر ہو یا خاموش مراقبہ۔ باقی دن کا کھیل یہ لمحہ جیت لیتا ہے۔ دوسرا راز، مسکرائیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل دیتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں، مسکراہٹ۔ یہ صرف چہرے کے پٹھوں کی حرکت نہیں بلکہ ایک سائیکالوجیکل، سوشیالوجیکل اور بائیولوجیکل سگنل ہے جو آپ کے دماغ، جسم اور ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامائن، سیروٹونن اور اینڈروفن جیسے خوشی کے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔
ये ना सिर्फ आपका मूड बेहतर करते हैं बल्कि जिस्म में तनाव कम करते हैं, ब्लड प्रेशर नीचे लाते हैं और दिल की धड़कन को मतवाजन करते हैं। इसलिए माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि अगर आप पूरा दिन अच्छा गुजारना चाहते हैं तो सुबह उठते ही मुस्कुराएं। ये बिल्कुल आपके दिन के लिए रीसेट बटन दबाने जैसा है। ये सिर्फ अंदरूनी फायदे नहीं देता बल्कि दूसरों पर भी गहरा असर डालता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसर्स की एक तहकीक बताती है कि मुस्कुराहट दूसरों में इत्मीनान पैदा करती है। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग और इनका दिमाग दोनों मिरर न्यूरॉन्स के जरिए जुड़ जाते हैं और दूसरा शख्स भी लाशौरी तौर पर मुस्कुराने लगता है। ये कंटेजियस पॉजिटिविटी आपके ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत बनाती है। अब सवाल ये है कि अगर आप सुबह सोकर उठते वक्त नींद से बोझल और थोड़े से चिड़चिड़े हों तो कैसे मुस्कुराएं? इसका जवाब भी सादा है। नकली मुस्कुराहट भी असली फायदा देती है। जी हाँ, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जब आप मुस्कुराहट का अमल शौरी तौर पर करते हैं तो दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि आप खुश हैं और वो खुशी के हार्मोन्स खारिज कर देता है। अमली तरीका यह है कि सुबह उठते ही कोई ऐसा लतीफा याद करें जो आपको हमेशा हंसा देता है। अगर याद नहीं आ रहा तो मोबाइल पर कोई मुख्तसर मज़ाहिया वीडियो देख लें या मॉर्निंग ह्यूमर सर्च करें। इसके अलावा आप आईने के सामने खड़े होकर कम से कम 30 सेकंड तक मुस्कुराने की मशक करें। ये शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन चंद दिन बाद आप देखेंगे कि ये आपका मिजाज बदल देता है। मुस्कुराहट सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल कामयाबी के लिए भी जरूरी है। फोर्ब्स मैगजीन के एक सर्वे के मुताबिक ऐसे लोग जो इंटरव्यूज या मीटिंग्स में खुश इखलाक और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं उनके मुंतखब या प्रमोट होने के इम्कानात 30% ज्यादा होते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट खुद इत्मादी, खुलेपन और मुस्बत एनर्जी का पैगाम देती है। ये तीनों चीजें कामयाब ताल्लुकात और मौके के लिए जरूरी है। इस आदत को रोजमर्रा का हिस्सा बनाने के लिए स्माइल ट्रिगर टेक्निक इस्तेमाल करें, यानी अपने घर या दफ्तर में कुछ ऐसे इशारे या अशिया रखें जो देखते ही आप मुस्कुराने लगें, जैसे बच्चों की तस्वीर, किसी मज़ाहिया लम्हे की फोटो या कोई छोटा सा मजाक लिखा हुआ नोट। ये चीजें आपको दिन में कई बार याद दिलाएंगी कि मुस्कुराना है। याद रखें, मुस्कुराहट मुफ्त है मगर इसका असर कीमती है। ये एक ऐसा तोहफा है जो आप खुद को और दूसरों को बैक वक्त देते हैं। जब आप दिन का आगाज मुस्कुराहट से करते हैं तो ये सिर्फ आपके मूड को नहीं बल्कि आपके पूरे दिन के हालात को बदल सकती है, क्योंकि मुस्बत दिमाग मुस्बत फैसले करता है और मुस्बत फैसले कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। तीसरा राज, खुद कलामी। दुनिया के सबसे कामयाब खिलाड़ी, सीईओज, अदाकार, हत्ता के स्पेस मिशंस के खिलाबाज भी एक मुश्तरका आदत रखते हैं। वो अपने आप से बात करते हैं और ये बात चुपके से दिमाग में नहीं बल्कि आवाज निकाल कर करते हैं। आपने देखा होगा एक बॉक्सर रिंग में जाने से पहले खुद से बार बार कहता है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर शीला हेम्फ्रीज के मुताबिक जब आप अपने आप से बुलंद आवाज में बात करते हैं तो दिमाग की ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी बात सिर्फ सोच नहीं रहती बल्कि दिमाग इसे सुनी गई हकीकत के तौर पर रिकॉर्ड करता है और लाशौरी तौर पर उसके मुताबिक एक्शन लेने लगता है। यही वजह है कि कामयाब लोग अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही आपका दिमाग एक खास अल्फा स्टेट में होता है। इस वक्त आप जो भी बात खुद को कहें वो सीधी लाशौर में दाखिल होती है। इसलिए ये बेहतरीन वक्त है कि आप अपने लिए ताकतवर जुमले बोलें, जैसे मैं माली तौर पर आजाद हूँ, मेरे लिए मौके आसानी से आते हैं, मैं बेहतरीन और सेहतमंद हूँ। रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आप अफर्मेशंस को ऐसे बोलें जैसे वो पहले ही हकीकत हैं तो दिमाग ज्यादा तेजी से यकीन करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कामयाब हो जाऊंगा की बजाय मैं कामयाब हूं कहें। ये थोड़ा सा फर्क दिमाग के लिए बहुत बड़ा असर रखता है। ये आदत शुरू करने का तरीका यह है कि रोज सुबह एक पुरसकून जगह पर जाएं, आईने के सामने खड़े होकर अपने अफर्मेशंस इतनी आवाज में बोलें कि आपके कान सुन सकें।
हर जुमला 3 बार दोहराएं और हर बार जज्बात शामिल करें, क्योंकि जज्बात अल्फाज को ताकत देते हैं। अगर आप बगैर जज्बे के कहेंगे तो ये एक मशीनी अमल रह जाएगा, लेकिन जब आप वाकई महसूस करते हुए कहेंगे तो दिमाग में एक मुख्तलिफ किस्म का बरकी सिग्नल बनता है जो ज्यादा देर पर असर डालता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि खुद कलामी सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि रहनुमाई के लिए भी है। अगर आप दिन के दौरान किसी मुश्किल में हैं तो खुद से बात करके अपनी सोच को साफ करें। मिसाल के तौर पर, ठीक है ये मसला बड़ा लग रहा है लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। अगला कदम क्या होना चाहिए? ये दिमाग को पैनिक से बाहर निकालकर लॉजिकल मोड में ले आता है। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन कहता है, मैं अपने साथ दिन में सैकड़ों बार बात करता हूँ और हर बार अपनी बेहतरीन वर्जन से बात करता हूँ। यही राज है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स खुद कलामी को अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बनाते हैं। सबसे अहम बात, ये अमल आपके सेल्फ इमेज को बदल देता है। जब आप बार बार अपने आप को ताकतवर, काबिल और कामयाब तस्वर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग और आपके एक्शंस इसी नक्शे पर चलना शुरू कर देते हैं और यही वो लम्हा है जब ख्वाब हकीकत में बदलते हैं। जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े इनकलाबात का इंतजार करने की जरूरत नहीं। कभी कभी छोटी मगर मुसलसल आदत ही सबसे बड़ी तब्दीली ले आती हैं। सुबह मुराकबा या इबादत से अपने अंदर का सुकून जगाना, मुस्कुराहट से अपने और दूसरों के दिन को रोशन करना और खुद कलामी से अपने दिमाग को कामयाबी के लिए प्रोग्राम करना, ये सब ना सिर्फ आपके दिन बल्कि आपकी तकदीर का नक्शा बदल सकते हैं। फर्क इस वक्त आता है जब ये चीजें सिर्फ पढ़ने या जानने तक महदूद ना रहें बल्कि रोज की मश्क बन जाएं। याद रखें, कामयाब लोग किसी जादू के मुंतजर नहीं रहते। वो हर दिन का आगाज इस यकीन के साथ करते हैं कि आज उनका दिन है और फिर वो इसे सच बना देते हैं। आप भी कामयाबी चाहते हैं तो इन तीनों आदत को जितनी जल्दी अपना सकते हैं तो अपना लें। मुहर्रिक चैनल को अपना दोस्त समझे, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।